what is relationship manifestation? जो बात दिल से निकलती है ना, वो दिल तक जरूर जाती है. आप अपनी लाइफ का चैप्टर नंबर 10 किसी और की लाइफ के चैप्टर नंबर 20 से कंपेयर नहीं कर सकते. अगर ये सही है तो सारी दुनिया की कायनात हिल जाए, ये मेरे तक आना चाहिए. और अगर मेरे लिए सही नहीं है तो फिर वापस से कायनात हिला देना, ये मुझ तक आना नहीं चाहिए. इसलिए खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है. How important is setting boundaries and is it selfish? हमारे पास जो भी रिश्ते आज हैं, कहीं ना कहीं हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया. राधा कृष्ण का प्यार है सोलमेट ओनली. सोलमेट क्यों? प्यार बहुत था, मोहब्बत बहुत, फिर साथ नहीं हुए. What are the steps that they can take for this self-healing? बोर होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का एक सही वक्त है. आज के पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि डोंट बी अ पेरेंट्स विद योर किड्स, बी अ फ्रेंड, बी अ बेस्ट फ्रेंड. तो छोटी छोटी बाउंड्रीज सेट करना पेरेंट्स के साथ भी इंपॉर्टेंट है. Your favorite relationship manifestation techniques. How to identify that you are in a toxic relationship, manifesting a specific person. Do you think it's a myth? Yeah, it's a reality. If you could have one superpower, what would it be? Welcome to POV Unpopular, where ideas, insights, and critical perspectives come alive. Now, before I introduce today's podcast episode to you all, here's a question. Ever wondered what it takes to create truly meaningful relationships? Well, let's join in today and let's welcome Mrs. Adhya Kumar, who is a relationship expert and coach, and she has guided thousands of people in her relationship coaching career to manifest love, to manifest meaningful, magical relationships, to self-heal, and to cultivate self-love. And that's what today's podcast is going to be. So let's dive in and let's uncover the secrets of manifesting beautiful, magical, fulfilling, long-lasting relationships. Stay tuned because this episode is going to be very interesting, very insightful, and a very, very heart-to-heart conversation for you all. Hello and welcome, Adhya ma'am, to POV Unpopular. So happy and so nice to have you here today. थैंक यू सो मच नुपुर. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. How are you, first of all? आई एम गुड. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक. Okay, so this is our relationship manifestation special episode, and I think this topic is a topic which is very special to me also because I feel that it's a topic where everyone can relate to. I think at the end of the day, each one of us is driven by relationships. Yes. Is maybe like some relationships we have with others, some relationship we have with our own selves, but at the end, the core is always a relationship. Yes. So I feel this topic is really, really, really special. It's Amazing. really a heart conversation, heart-to-heart conversation. 100%. 100%. Okay. So we'll begin. And मेरा जो पहला question है आपसे, it is like, what do you think are the core ingredients for a happy, long-lasting, healthy relationship? Amazing. It's a beautiful question, and many people know about it, but somewhere we don't practice, and somehow we don't know the inner values of it. And when it comes to relationship, I always say this, and I really believe in it. जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है जिसके पास रिलेशनशिप है. वो कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ले, वो कितना बड़ा घर बना ले, कितनी दौलत कमा ले, वापस आने के बाद अगर उसके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ है और जिन्हें वो आके बता पा रहा है अपनी चीजें, वो अपनी सक्सेस, अपना प्यार, अपनी वैल्यू शेयर कर पा रहा है, तो आई गेस इस दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है जिसके पास अपने खुद के रिलेशनशिप है. एंड इट कैन बी एनीवन, इट कैन नॉट बी ओनली स्पाउस. बहुत बार लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये स्पाउस से और गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है. इट्स नॉट लाइक दैट. रिलेशनशिप मीन्स जब आप घर आते हो तो आपका स्पाउस हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, Friends तो ये फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो ये रिलेशनशिप आपकी जो है वो कोर वैल्यू है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें कि इसके कोर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, हम हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बट लेट्स से अगर हम कुछ कॉमन की बात करें, सो फर्स्ट आई ऑलवेज प्रिफर, एंड मैं इसको सबसे ज्यादा जो है वो प्रिफर करती हूँ, सबसे ज्यादा इसको इस पे वो करती हूँ कि कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पार्टनर या आपके साथ जो आपके रिलेशनशिप है, आप उनसे दिल की बात करो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि, और मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम का जो पर्सनल चैनल है उसका नाम भी है दिल से दिल तक. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि जो बात दिल से निकलती है ना, वो दिल तक जरूर जाती है. तो आप अगर पार्टनर को दिल से कम्युनिकेट कर पा रहे हो हर छोटी बड़ी बात, जैसा आप महसूस करते हो, जैसा आप चाहते हो, तो आई गेस बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, रादर देन कीपिंग इन इनसाइड एंड अज्यूमिंग कि तुमने ऐसा कहा था तो वैसा हुआ होगा, तुमने ऐसा सोचा होगा, मेरे लिए वैसा कहा होगा. खुद के सवाल खुद के जवाब से अच्छा है कि कम्युनिकेट करें. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड इज रिस्पेक्ट होनी चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है. अब दैट डजंट मीन कि हस्बैंड वर्किंग है तो रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी होगी, वाइफ वर्किंग है तो रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी होगी. अगर एक फीमेल हाउस वाइफ है और पूरा दिन घर संभाल रही है तो वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट की के लायक है. उसकी रिस्पेक्ट कम या ज्यादा नहीं हो सकती. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है बिकॉज इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट अपनी अपने जगह पर होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टी होनी चाहिए क्योंकि ऑनेस्टी के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते रिलेशनशिप में, बिकॉज कहते हैं ना ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन. जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और हमारा इस बात पर डिपेंड करता है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उसका उतना स्ट्रॉन्ग गहरा फाउंडेशन होगा. जब हम एक फाउंडेशन बनाते हैं ये बात हमारे दिमाग में होती है कि मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये गिरेगी नहीं, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश होगी, बहुत कुछ होगा, भूकंप आएगा, बट ये गिरेगी नहीं. तो इस थॉट से हम फाउंडेशन बनाते हैं. सिमिलरली जो हमारे रिलेशनशिप की फाउंडेशन है दैट इज ट्रस्ट, दैट इज ऑनेस्टी. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट की मतलब ट्रांसपेरेंसी से आप बात कह सको. वन कैन बी ग्रोथ माइंडसेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बात कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो आप कैसा माइंडसेट कैरी करते हो, आप शेयर करते हो. ग्रोथ माइंडसेट है, लाइफ में क्या करना चाहते हो, एंड एज वेल एज अ सपोर्टिव पार्टनर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्ट और करना कि हो सकता है कोई चाहता है, अगर आपका पार्टनर चाहता है स्टार्टअप चलाना तो आप सपोर्ट कीजिए. आपका पार्टनर चाहता है जॉब के साथ कुछ करना तो आप सपोर्ट कीजिए. आपका पार्टनर चाहता है एक हॉबी परस्यू करना तो आप सपोर्ट कीजिए. जो भी आपका पार्टनर चाहता है, जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं, उसके सपने हैं, उसको सपोर्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई गेस ये कुछ हैं जो हम कह सकते हैं कि कोर वैल्यूज है हेल्दी रिलेशनशिप की. All right. Okay. I think we pretty much covered all the basic core values in a relationship. But हमने एक चीज का नाम नहीं लिया यहाँ पे, so I'm just curious. हमने love का नाम यहाँ पे नहीं लिया. Okay, definitely love होना चाहिए. हाँ. Okay. Okay. Now moving on. So we'll talk about relationship manifestation. But even before that, एक I think उसके पहले भी एक step होता है, which is related to self healing, right? Because बहुत सारी बार हम देखते हैं कि before entering a romantic relationship, people are not healed. They have carrying so much of past baggage, traumas, everything, and then they enter into a relationship, जो कि कहीं ना कहीं फिर बहुत दिक्कत आती है उसमें, and maybe the other person who is in a relationship, उनको भी इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि there is no fault of the other person. So how important is self healing before entering a new relationship, a romantic relationship? It's very important. See, because let's say कभी आपसे ऐसा हुआ होगा गलती से, या आपको नहीं पता होगा, या अनजाने में या जान के कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने एक ऐसे कप में अपनी चाय, कॉफी या पानी डाला जो तड़का हुआ था, तिड़का हुआ जिसे बोलते हैं, जिसमें दरार है. तो होता क्या है, जब हम उसमें पानी डालते हैं, कॉफी डालते हैं या चाय डालते हैं, तो वो उसके नीचे से निकल जाती है बिकॉज वो टूटा हुआ है, उसमें एक दरार आई हुई है. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, अगर मैं खुद से हील्ड नहीं हूं, अगर मेरी सेल्फ वर्थ खत्म है, मेरा सेल्फ लव खत्म हो चुका है, या मैं किसी पास्ट ट्रॉमा से गुजर रही हूं, या मेरे साथ पास्ट कुछ रिलेशनशिप के ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैंने खुद को हील नहीं करा एंड डायरेक्टली जंपिंग इनटू अनदर रिलेशनशिप, तो होगा क्या, चाहे मेरे पास कॉफी जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ जाए या पानी जितने ठहराव का रिलेशनशिप आ जाए, ठहरेगा कुछ भी नहीं क्योंकि मेरे कप में क्रैक है. सो व्हेन इट कम्स टू गोइंग अनदर इनटू रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी खुद की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हीलिंग नहीं होगी तो मैं कितने ही रिलेशनशिप में चली जाऊं, मुझे वो एक खालीपन दिखेगा, या मेरे पैटर्न्स रिपीट होंगे, राइट? या अगर मैंने अपने आप को हील नहीं करा तो मैं अपनी सेल्फ वर्थ हमेशा दूसरे पार्टनर में मैं हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढूंगी कि ये है तो मैं हूं, ये नहीं है तो मैं नहीं हूं, ये चला गया तो मेरा क्या होगा, इसे कोई और मिल गई तो क्या होगा, या इसे कोई और सुंदर लड़का मिल गया तो क्या होगा. तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को हील करके, जब आप खुद में कंप्लीट होते हो, तब आप सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बना पाते हो. तो सेल्फ हीलिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए. Okay, so now since we are talking about self-healing, let's say people like someone who is listening to us and people who are feeling broken, who have just come out of a bad relationship, whatever, what are the steps that they can take for this self-healing? They can do many things. Like for example, जैसे उन्हें ये समझना है कि सेल्फ हीलिंग करनी है तो हम एक बहुत अच्छी टेक्निक के बारे में बात करते हैं which is called Ho'oponopono. It's an Hawaiian technique जिसमें आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे दुख है, अगर मुझे ट्रॉमा है, तो वो क्या रीजन है उसका. बिकॉज कई बार वी डोंट नो द रीजन, एंड समटाइम्स जो ट्रॉमाज होते हैं हमारे, वो हमारे पास से आए होते हैं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने फादर को अपने घर में
एक अलग नजरिए से देखा है, या उनका फॉर एग्जाम्पल उनका मेरी मदर का रिस्पेक्ट ना करते हुए देखा है, तो आई थॉट मेरे लिए वो डेफिनेशन बन गई कि जो प्यार की डेफिनेशन है, ओके उसमें रिस्पेक्ट नहीं चलती तो चलेगा। अगर मैंने अपनी मदर को सबको खाना खिला के एंड में खाना खाते हुए देखा है, सबको प्लीज करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं मैंने वो लव की डेफिनेशन बना ली कि ओके प्यार में प्लीज करना होता है लोगों को, बिकॉज हमने देखा है। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस बिकम्स नॉर्मल फॉर मी। जब मैं अपने रिलेशनशिप में जाऊंगी और मेरे साथ मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा या मुझे प्लीज करना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि दिस इज नॉर्मल, बट समवेयर आई विल अंडरस्टैंड दैट ये मुझे खाली कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं? नाउ एक चीज हम बोलते हैं हमेशा कि एक छोटे बच्चे का जो माइंडसेट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड 8 ईयर्स तक बिल्ट होता है। तो जो भी उसके साथ 8 साल की उम्र तक हुआ है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं उससे उसके दिमाग में रह जाता है। और जब वो अपने एडल्टहुड में आता है तो उसका 100% असर उसके रिलेशनशिप पे पड़ता है, और उसको शायद पता भी नहीं है और उसको शायद कॉन्शियसली पता भी नहीं है। तो उसे ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि ओके ये आया कहाँ से है, या समटाइम्स हमें नहीं समझ में आता आया कहाँ से, बिकॉज कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो इसके लिए हम करते हैं होपोनोपोनो हवाइन टेक्निक, जो ये कहती है कि यू हैव टू रिपीट और चैंट 4 फ्रेजेस, जिससे आपकी इंटरनल हीलिंग होगी। दोज 4 फ्रेजेस आर: आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry means that whatever is happening with me, I am taking responsibility. अगर मुझे पार्टनर बार बार चीट करने वाला मिल रहा है, अगर मुझे बार बार पार्टनर एक्सप्लॉइट करने वाला मिल रहा है, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, दैट मीन्स गलती कहीं ना कहीं तो मेरी भी है। तो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिलेशनशिप में अगर चैलेंज आया है, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो गलती मेरी भी होगी। सो आई एम सॉरी मीन्स आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज फॉरगिव मी, अब मुझे माफ कीजिए, बिकॉज अब मैं हीलिंग जर्नी पे जाने को तैयार हूँ। सो आई एम रियली लुकिंग फॉर द सॉरी, आई एम रियली लुकिंग फॉर द फॉरगिवनेस फ्रॉम माई हार्ट, और अब मैं इस हीलिंग जर्नी पे जाना चाहती हूँ, बिकॉज इस सिचुएशन की वजह से मैंने तुम्हें तकलीफ दी, एंड दैट इज आई एम सेइंग टू माई सेल्फ, मैं खुद को बोल रही हूँ कि मैंने अपने आप को तकलीफ दी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, बिकॉज आई एम ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, कि अब जो मेरी जर्नी में हीलिंग होगी, मैं उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ, एंड आई लव यू, मतलब जो भी अब मेरी लाइफ में होने वाला है, और मैं हीलिंग जर्नी के थ्रू फ्यूचर में जो भी अट्रैक्ट करूंगी, उसके लिए मैं एडवांस में आपको आई लव यू बोल रही हूँ। सो दिस हवाइन टेक्निक बेसिकली इससे होता क्या है, इससे आपकी सेल्फ फीलिंग होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम चैंटिंग करते हैं, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, या हम हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो जब हम वो बोलते हैं तो बोलते बोलते कहते हैं ना, हम 108 बार उसको रिपीट करते हैं, और कई बार हम एक ऐसे जीरो स्टेट में चले जाते हैं जहां डायरेक्ट यूनिवर्स से कंसल्ट होता है हमारा, या कांटेक्ट होता है। सिमिलरली जब आप इस टेक्निक को करते हो, विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो, तो आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू को जब आप रिपीट करते हो, आप सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, 5 मिनट्स कर लीजिए, 108 बार कर लीजिए, जैसा आपका दिल करे आप उसको कर सकते हो। करना क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर फ्रेजेस 4 रहेंगे: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। बट किस चीज के लिए कर रहे हो, वो इंटेंशन आपको सेट करनी है। तो अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए कर रहे हो तो आपको सेट करनी है, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो आपको सेट करनी है, फाइनेंसिस के लिए कर रहे हो तो आपको सेट करनी है, हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आपको सेट करनी है। तो ये करके आप हीलिंग कर सकते हो। इट्स वंडरफुल प्रैक्टिस, बहुत लोग इससे हील हुए हैं। वन कैन बी, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप लिख सकते हो आप कौन से ट्रॉमा से निकल रहे हो, आपको क्या तकलीफ दे रहा है, आपको क्या परेशान कर रहा है, वो आप कर सकते हो। आप कोई भी हॉबी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे, जहां एटलीस्ट अगर 1 घंटे की भी क्लास है तो आप वहां जाके भूल सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप मिरर वर्क कर सकते हो, आप खुद को देख के एफर्मेशंस कर सकते हो। ये सारी चीजें जो आपको सेल्फ हीलिंग में काम करती है, इंपॉर्टेंस देती है। करेक्ट, एंड आई बिलीव कि थोड़ा सा वो टाइम आपको देना पड़ेगा खुद को। 100%. It will take some time. It is not a one day thing. Absolutely, yes. It's very important because एक दिन में नहीं आएगा चेंज, बिकॉज ये अगर सालों का चला आ रहा है, बचपन से चला आ रहा है, इट विल टेक टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना लोग कि वजन बढ़ाने में उन्हें 8 साल 10 साल लगते हैं, लेकिन घटाना उन्हें 8 महीने और 8 हफ्ते में। इट्स नॉट पॉसिबल अंटिल वो फिर आजकल जो चल रहा है कि ओजेम्पिक ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। इट टेक्स टाइम एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वजन बढ़ने में अगर टाइम लगा है, वजन घटने में भी टाइम लगेगा। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। पैरेलल आप एक्शन लेते रहो, डाइट करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, जिम करते रहो, योगा, जो आपको अच्छा लगता है, बट टाइम तो लगेगा। इट विल टेक टाइम। ओके,
ठीक है, सो अभी हमने वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बिफोर एंटरिंग अ रिलेशनशिप. अभी थोड़ा सा वील टॉक अबाउट रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन. तो पहले तो व्हाट इज रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, क्या मतलब है? Relationship manifestation is like you're manifesting a person, okay, with a high vibration and extended with the action always. कि आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते हो, बिकॉज कहते हैं ना स्पेशली विद द फीमेल्स कि पार्टनर का सपना बहुत जल्दी उम्र से वो देखने लगते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मेरा पार्टनर वैसा होगा, मैं ऐसे रहूंगी, हम ऐसे कॉफी डेट पे जाएंगे, हमारा ऐसा घर होगा, ऐसी शादी, ऐसे पर्दे. सो इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग ओनली. तो जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा पार्टनर होगा, ऐसा होना चाहिए, नॉट होगा, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, दैट मीन्स मैं वो लव जो है वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो रोमांटिक रिलेशनशिप मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ. एंड इट कैन बी विथ पार्टनर और इट कैन बी विथ एनीवन. जैसे अगर मैं आज कोचिंग के लिए भी जाऊं, हेल्थ कोचिंग के लिए जाऊं, तो एक समवेयर मेरे माइंड में होगा कि मेरा हेल्थ कोच ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, ऐसा ना मैं बोलूं उसको क्या तकलीफ हो रही है वो समझ ही ना. तो रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन बेसिकली जो आपको रिलेशनशिप जैसा चाहिए अपनी लाइफ में, आप वैसा मैनिफेस्ट करते हो. जैसे मैं अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करती थी, मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए भी मैनिफेस्ट करती थी कि ऐसी होंगी, मैं अपने फादर इन लॉ के लिए, मदर इन लॉ के लिए मैनिफेस्ट करती थी कि ऐसा होगा. तो जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो. दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन. ओके, सो आई थिंक इससे ही परहैप्स अ लॉट ऑफ पीपल अनकॉन्शियसली दे मैनिफेस्ट द नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज आई थिंक वो एक फियर से जब हम करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, Yes. कहीं मेरी शादी हो और ऐसा कुछ ना हो जाए, तो आई थिंक वो दैट ऑल्सो कन्वर्ट्स, राइट, दैट ऑल्सो बिकम्स रियलिटी. 100%. When it comes to a farmer, जब एक हम किसान की बात करते हैं, और इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल हम फार्मर से ही समझ सकते हैं. जब एक किसान चाहता है कि उसकी फसल उगेगी, तो वो सबसे पहले बीज डालना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, द बेसिक काम. क्या लगता है कि जब वो एक बीज डालने जाता होगा उसके थॉट में क्या चलता होगा? बहुत अच्छा फसल उगेगी. Exactly. हाँ. बहुत अच्छी फसल उगेगी और इस बार पैसे इतनी मिलेंगे. कमाई होगी, हाँ. और मैं अपने बच्चों के लिए ये करूंगा, मैं अपने घर के लिए करूंगा, मैं ये सब करूंगा. इसी थॉट से जाके वो करता है. उसके बाद वो मेहनत करता है, सिंचाई करता है, पानी देता है, खाद डालता है, सब कुछ करता है. फिर वो प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करता है क्योंकि पता है चैलेंजेस आएंगे, हवा, पानी, बारिश, तूफान, सर्दी, गर्मी, मौसम, बरसात, सब आएगा. वो करता है. हमें क्या समझना है, तो जब अगर वो बीज ही नेगेटिव बोएगा तो क्या लगता है फसल अच्छी होगी? आंसर इज नो. हमें भी ये समझना है जब हम किसी रिलेशनशिप के कगार पे जा रहे हैं या उसके दरवाजे पे जा रहे हैं, तो हमारा जो सीड है वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर मैं स्टार्ट ही नेगेटिव से करूंगी, हम ना कई बार ये नहीं समझ पाते कि सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल को क्यों बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, बच्चे पे असर होगा. इट्स नॉट ओनली विद प्रेग्नेंट फीमेल, इट्स विद एवरीवन. आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आई हैड दिस इंटेंशन, यू हैड दिस इंटेंशन कि मस्त जाएगा, ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट जाएगा, बहुत लोग इसे देखेंगे और बहुत लोगों को उनके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट से मिलेंगे. तो ये थॉट होना बहुत जरूरी है. तो जब हम किसी चीज की नेगेटिव, और नेगेटिव क्या है, सोशल, हमने फ्रेंड्स में इतने डाइवोर्सेस देख लिए. अभी तो डाइवोर्सेस का भी एक अलग लेवल चल रहा है न्यूज में, वो डिस्कस करना भी बहुत टेरिफिक लगता है. तो हमने वो देख लिया कि रिलेशनशिप हमारे आसपास के खराब है, तो हम स्टार्ट ही इससे करते हैं. करेक्ट. व्हाई नॉट मैनिफेस्टिंग कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी होंगी, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, और वो होगा. एंड बिलीव यू मी कि जब मेरा व्हेन आई गॉट मैरिड, और मैं तो मैनिफेस्ट करती थी कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी होंगी, मेरे फादर इन लॉ ऐसे होंगे. अब मेरे को तो उल्टा मिला. ओके. बिल्कुल उल्टा मिला. अब मेरे पास चॉइस क्या है, या तो मैं फिर यूनिवर्स पे डाउट करूं कि अरे मैंने क्या मांगा था और क्या दे दिया. बट वी नीड टू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का एक सही वक्त होता है. ओके. सो व्हेन आई एंटर्ड एंड आई गॉट, अच्छा ये तो थोड़ा सा चेंज है, ये सिचुएशन चेंज है जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये तो उसके नजदीक भी नहीं है कहीं. व्हाट टू डू देन? आई वेटेड, आई टुक अ पॉज, आई टुक अ ब्रीथ कि ओके ठीक है, मतलब भगवान ने कुछ तो सोचा होगा. फिर टाइम बाय टाइम, धीरे धीरे, साल, 6 महीने, 8 महीने, ऐसे ऐसे करके फिर चीजें उसी ट्रैक पर आ गई जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था. एग्जैक्टली. इट टुक टाइम, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 साल लगा. स्टार्ट होने में 6 महीने लगे, बट इवेंचुअली आ गई. मैं जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बहुत कम पॉडकास्ट पे मैंने यूज किया कि जैसे आई वाज लाइक कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहती हूँ. अब शादी के बाद आपको पता चले कि आपको इतना बड़ा घूंघट लेना है, तो आई वाज लाइक मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट जब ये पता चलता है कि यहाँ का रिवाज है, और बड़ी दीदी ने भी, बहू ने भी किया है, एंड यू कैन नॉट फाइट दैट. सो आप नहीं कर सकते बिकॉज वो रिचुअल है आपका, और आप उसको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके फैमिली का एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है. अब उसमें मैं क्या करूं? देन आई वाज लाइक अच्छा मैंने तो कुछ और ही सोचा था, आई विल वेयर जीन्स, पैंट, टॉप, जो मुझे पहनना है मैं वो पहनूंगी. यहाँ तो बिल्कुल उल्टा निकला.
देन आई टुक अ पॉज. ओके, आपको सिचुएशन, आप एक्शन करते चलो, आप डेली अपना रिस्पेक्ट रखो, प्यार रखो, खाना रखो, जो घूमना रखो, सब रखो. धीरे धीरे आप अपनी बात बोलो ना. एंड बिलीव यू मी, मेरी मदर इन लॉ एक दिन कहीं गई हुई थी, बिकॉज वो होता है ना, अच्छा जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, कि पता है ये बात पापा नहीं मांगेंगे तो मम्मी के थ्रू जाते हैं. Correct. और मम्मी नहीं मानेगी तो पापा के थ्रू, उन्हें पता होता है. और दोनों नहीं मानेंगे तो दादा दादी के थ्रू, हाँ. क्यों उन्हें पता है किससे अपनी बात मनवानी है. हाँ. Similarly, when I was like कि okay, it is difficult कि थोड़ा सा mother-in-law को बनाना मुश्किल लग रहा है, I'll go through father-in-law. Okay. तो एक दिन mother-in-law नहीं थी, I went to my father-in-law. I said, पापा सुनो ना, ये नहीं हो पाएगा, it's very difficult, और ये मैं हूं नहीं, ये क्यों करना है. Then he said कि हमारे यहाँ का थोड़ा सा रिचुअल है, ये है. मैंने कहा बट पापा, अगर रिस्पेक्ट सिर्फ इससे आता है तो आप मुझे बताओ, इसके अलावा भी तो रिस्पेक्ट हो सकता है ना. ये मुझसे नहीं होगा, मैं कितने दिन कर लूंगी, और ये मैं हूं नहीं तो आप कितने दिन मुझसे करा लोगे. फिर वो अच्छा ठीक है, जब मम्मी आए ना तो मम्मी के सामने रख लेना, मम्मा गुस्सा करेंगे. ऐसा ठीक है. वहां से स्टार्ट हुआ. फिर मम्मी को समझाया उन्होंने. फिर हुआ कि अच्छा ठीक है, जब हमसे मिलने आओ या जब गांव जाओ या रिश्तेदारी में जाओ तब रख लेना. आई सेड हाँ, ये मैं कर सकती हूँ. वहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो बंद ही हो गया. तो विद इन 1 year आई गेस, मतलब पल्ले वाली कहानी तो ये मेरी 1-1.5 हफ्ते में खत्म हो गई. बट बाकी सारी चीजें विद इन 1 year, विद इन 8 months, ऑल थिंग्स लाइक हैपेंड ऑन द सेम प्लेस, जैसा मैंने सोचा था, एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में. तो हमें ये समझना है कि मैनिफेस्टिंग जो हम कर रहे हैं वो हमें पॉजिटिव माइंडसेट से करनी है. हर इंसान का वक्त अलग अलग है. अगर आपको फीवर है, मुझे फीवर है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, आपको भी उन्होंने कोर्स दिया, मुझे भी दिया. बट दैट डजंट मीन कि आपका कोर्स भी 3 दिन का है और मेरा भी 3 दिन का. हो सकता है मुझे 6 दिन लगेंगे. इट्स माई बॉडी माई सोल, है ना. तो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है. तो सिमिलरली हर इंसान का टाइम अलग है. आप कोई सोचा आपके लिए 1 साल में काम किया तो मेरे लिए भी 1 साल में काम करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. तो आपको जब रिलेशनशिप का बीज बोना है तो वो पॉजिटिव माइंडसेट से बोना है. आप ये सोचो ही नहीं ना कि मेरी मदर इन लॉ ऐसे निकलेगी, मेरा हस्बैंड ऐसा निकला तो, मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी निकली तो. आप ऐसा सोचो ही नहीं, आप पॉजिटिव सोचो. This is a very beautiful story because I think कि अगर let's say किसी और थर्ड पर्सन के साथ ऐसा हुआ होता, दे मैनिफेस्टेड समथिंग, दे गॉट एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट, तो मे बी एक कोर्स ऑफ एक्शन ये होता कि लड़ लेते. yes. एकदम रिबेलियस मोड में आ जाते हैं. कि एकदम कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये वो, एंड लेट्स सेपरेट या ब्ला ब्ला ब्ला, आई कैन नॉट एडजस्ट. बट the way that you handled it beautifully, still believing कि whatever I manifested is possible, perhaps आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. I think that's a beautiful story. Very true. I mean, it's very important because हमें क्या होता है ना, when it comes to relationship and going to other person's family, हम बड़े रिबेल, जैसे आपने बोला ना, बड़े रिबेल हो जाते हैं. यही बात, not this बात, कोई भी बात हमने बचपन में या कॉलेज में, जवानी में, हमने अपने माँ बाप से मनवाई है. लड़के, मर के, रो के, नीचे फैल के, है ना, खाना छोड़ के, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज से, करवाया ना, मान गए. तो जब आता है कि हम जब ससुराल जाते हैं या हम अपने पार्टनर की फैमिली में जाते हैं तो वहां रिबेलियस क्यों हो जाते हैं. टेक टाइम नो. उन्हें भी, उनके लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, वक्त लगेगा, मान जाएंगे, आप मना लोगे. बट वो एकदम से अपने झंडे गाड़ दिए कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू नीड टू हैव दैट पेशेंस कि हर रिलेशनशिप को बिल्ड होने में टाइम लगता है. हो जाएगा. Okay, so talking about relationship manifestation, do you think there are certain myths and about it as well? Like for example, manifesting a specific person. Do you think it's a myth? Yeah, it's a reality. या ऐसा ही कोई myths हैं surrounding this manifesting relationships? Manifesting में, when it comes to manifest a specific person, I always say this कि जिंदगी में अगर किसी इंसान को चाहते हो, चाहिए, तो उसके लिए जब आप मैनिफेस्टेशन करो तो आपको ये समझना है कि इंसान मैनिफेस्ट मत करो कभी भी. ऑलवेज मैनिफेस्ट क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन. एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना, तो मैं इसको थोड़ा अनएथिकल मानती हूँ. वाई? बिकॉज एवरी पर्सन हैव अ फ्री विल. हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है. मैं आपको आपकी विश के ऑपोजिट जाके मैं आपको मैनिफेस्ट कर रही हूँ. आप मेरे साथ नहीं आना चाहते, आप मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना चाहते, आपको मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता, बट स्टिल आई एम मैनिफेस्टिंग यू. मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए. मैं एफर्मेशंस में, विजुअलाइजेशन में, मैंने शादी कर ली आपसे अपने सपनों में, तो बट सामने वाला नहीं चाहता. हमें ये समझना है, एंड इसका रीजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. व्हेनेवर इट कम्स टू मैनिफेस्ट अ पर्सन, पहला आई हैव शेयर्ड, मैनिफेस्ट अ स्पेशल पर्सन. नॉट मतलब स्पेशल, स्पेसिफिक मत करो.
स्पेशल करो। आपका जो पार्टनर होगा या होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार देना जानता हो, रिस्पेक्ट देना जानता हो, कॉफी डेट पे जाएं तो हम स्माइल कर रहे हैं, फाइनेंसेस मैनेज करना जानते हो, है ना, मेरे पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितने अपने पेरेंट्स की करते हैं। ये क्वालिटीज हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं रादर देन मैनिफेस्ट अ पर्सन। नाउ एक तो ये अनएथिकल है किसी इंसान को उसके विल के अगेंस्ट जाके आपको करना। अब विल के अगेंस्ट जाके आप कितना करा लोगे? फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट वन पर्टिकुलर मिठाई, मैं नहीं खाती। आपने मुझे बोला देख मैं एक दिन खिला के रहूंगी, एक दिन खिला के रहूंगी, एक दिन खिला के रहूंगी, और मैं भगवान से भी बोल रही हूँ मैं एक दिन इसको ना खिलाऊंगी, आपके प्रसाद के बहाने के रूप में मैं इसको मिठाई खाऊंगी, खिलाऊंगी। हो सकता है मैं खा लूं आपका मन रखने के लिए, कितनी बार? मुश्किल से एक बार, वो भी आपने भगवान का नाम अगर ले दिया तो पहला तो फ्री उसके अकॉर्डिंग ले सकते। बट हम ये नहीं समझते। आप ना, तो आप एक इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आपको पता है उस इंसान के साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? यू डोंट नो दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बेकरी में जाते हो, आपको पेस्ट्री खाना पसंद है, मैंने अभी किसी से बात करी थी, आई टुक द सेम एग्जांपल। आप एक बेकरी में जाते हो, आपको पेस्ट्री खाना पसंद है, यू लव चॉकलेट पेस्ट्री, आपने एंटर किया, सामने आपको चॉकलेट पेस्ट्री दिखी। नाउ यू लाइक इट्स वेरी टेम्पटिंग, ये बहुत मजेदार है, मुझे तो यही खानी। आपने जाके काउंटर पे पूछा ये पेस्ट्री कितने की है? चॉकलेट पेस्ट्री, आई नीड दैट, आई वॉन्ट दैट, मुझे खानी है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। उसने दे दी, लेकिन आपने ले ली। अब आपने इसमें दो चीजें नहीं समझी। पहला, आपने वो यमी टेम्पटिंग पेस्ट्री तो ले ली, आपको नहीं पता कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। दैट इज नंबर वन। सेकेंड, आपने वो पेस्ट्री ले ली जिद में आके, आपको नहीं पता कि उसी पेस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ा केक था जिस पे आपकी नजर ही नहीं गई, क्योंकि आप सिर्फ उस पेस्ट्री तक रहे। तो व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना, तो स्पेसिफिक मत कीजिए, बिकॉज ये अनएथिकल है। भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसको हमेशा ये बोलिए कि जो मेरे बेस्ट गुड के लिए है उसको अट्रैक्ट करो, जो मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है उसको अट्रैक्ट करो। और हमेशा मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मैं शादी से पहले आई रिमेंबर कि मैं माता रानी पे भी गई हूँ, कहीं पे भी गई हूँ, और जब भी मैंने अपनी ये विश रखी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आई ऑलवेज से दिस कि भगवान जी अगर ये सही है तो सारी दुनिया की कायनात हिल जाए, ये मेरे तक आना चाहिए, और अगर मेरे लिए सही नहीं है तो फिर वापस से कायनात हिला देना, ये मुझ तक आना नहीं चाहिए। सो आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे मिल जाएगा। तो आप हमेशा यही प्रेयर करो यूनिवर्स से कि जो मेरे लिए सही है, मेरी हेल्थ के लिए, गुड के लिए, ग्रोथ के लिए, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, आप उसी को मेरी लाइफ में लेकर आओ, रादर देन कि एक स्पेसिफिक चाहिए उसके पीछे भागना। और आजकल एक स्पेसिफिक वाला जो ट्रेंड है, इट्स रियली वेरी वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। जब मुझे डीएम्स मिलते हैं, आई गॉट शॉक्ड, यू नो, लड़कियां क्या बोल रही हैं, लड़के क्या बोल रहे हैं, इट्स रियली शॉकिंग। आई मीन, लड़की है, लड़के ने ब्लॉक किया हुआ है, लड़का बैंगलोर में रहता है, लिव इन में रहते थे, अब वो बैंगलोर चला गया, 6 महीने हो गए लिव इन में रहते हुए, अब उसकी शादी फिक्स हो गई है, बट स्टिल दैट फीमेल वांट द सेम गाय, कि मुझे वही चाहिए। आई सेड वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। अगर प्यार करता तो शादी कहीं और क्यों करता? बट वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। तो वो स्पेसिफिक के पीछे पड़ के ना, आप नहीं पता कि आप लाइफ में शायद उससे अच्छा कुछ क्या मिस कर रहे हो, आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। ओके, सो ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिक वाला। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चले हैं, स्पेशली आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में बहुत आता है। एक आपका हो गया सोलमेट्स, एक आपका हो गया ट्विन फ्लेम्स, एक हो गया कार्मिक रिलेशनशिप्स। डू यू बिलीव ये होता है? लाइक हम इसको दो तरीके से देखते हैं। हम इसको साइकोलॉजिकल तरीके से भी देखते हैं, हम स्पिरिचुअल तरीके से भी देखते हैं। हाँ. अगर लेट्स से हम इसे स्पिरिचुअल तरीके से देखें, तो व्हेन इट कम्स टू महादेव एंड व्हेन इट कम्स टू माता पार्वती, तो ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, सोलमेट, स्पिरिचुअल सोलमेट्स। क्योंकि भगवान शिव की जो शादी थी वो माता सती से हुई। सती को बोला जाता है, माता पार्वती को इनकारनेशन ऑफ सती बोला जाता है, कि वो उन्हीं का जन्म उन्होंने वापस से लिया। तो दिस इज सोलमेट थिंग ओनली। राधा कृष्ण का प्यार है सोलमेट ओनली। सोलमेट क्यों? प्यार बहुत था, मोहब्बत बहुत, फिर साथ नहीं हुए, फिर बिछड़ गए, बट बहुत है। सोलमेट कैन बी, हम एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेते हैं स्पिरिचुअल टर्म्स में, भगवान श्री राम का और माता सीता का हम लेते हैं। उसमें सोलमेट, उसको हम सोलमेट से ज्यादा सोलमेट भी बोलते हैं, ट्विन फ्लेम भी बोलते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम बहुत वाइब्रेशन वाला होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत मतलब आप क्या वर्ड उसको ये देना चाहेंगे, फिट इन, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल बेस पे बहुत हाई होता है। वाई? बिकॉज जैसे अगर हम भगवान श्री राम का और माता सीता का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, तो उनमें प्यार था, मिले, अलग हुए, फिर मिले, फिर अलग हुए,
और एक टाइम के बाद उन्हें कहते हैं कि वो अग्नि परीक्षा भी उन्हें देनी पड़ी। पहली बार की अग्नि परीक्षा उन्होंने मानी, उन्होंने दी भी, लेकिन लव कुश के टाइम पे जब वापस अग्नि परीक्षा का टाइम आया तो फिर उन्होंने बोला कि धरती समाए और मैं चली जाऊं, बस बहुत हो गया। तो ये हम स्पिरिचुअल सोलमेट हम कह सकते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल, उसमें कि जिससे मेरी पट गई या जिससे मेरा मैच कर गया, हम खाते सेम है, हम सोचते सेम है, हमारा टेस्ट बिल्कुल सेम है, तो हम उसको सोलमेट कह सकते हैं। बट यस, हम ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वे में भी कि सोलमेट्स होते हैं। आप जिससे आपका ग्रोथ माइंडसेट मैच करता है, आप उसको दिल की सारी बात बोल देते हो, और कई बार आपके दिल की बात बोले बिना उसे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज माई सोलमेट। बट सोलमेट को लेके मिथ क्या है? सोलमेट को लेके मिथ ये है कि एक ही होता है। हमारी को सोल्स बहुत सारी होती हैं, तो हमारा सोलमेट कभी भी एक नहीं होता। तो लाइफ के पड़ाव पर, उम्र के पड़ाव पर, करियर के पड़ाव पे हमारे सोलमेट चेंज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो करियर के पड़ाव पर मेरी वन ऑफ दी प्रोफेसर वाज माय सोलमेट, बिकॉज वो मुझे जिस तरीके से गाइड करती थी, समझती थी, तो मुझे लगता था इनसे ज्यादा समझने वाला इंसान कोई है नहीं। आई गॉट मैरिड, देन आई गॉट माई हस्बैंड, लाइक ही इज माई सोलमेट। तो आपका गुरु भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपका सिबलिंग भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपका मेंटोर सोलमेट हो सकता है, किसी की मदर सोलमेट हो सकती है, किसी के फादर सोलमेट हो सकते हैं, किसी की बेस्ट फ्रेंड सोलमेट हो सकती है। तो सोलमेट कैन बी मेनी। तो आपकी को सोल्स बहुत सारी होती हैं, और कहते हैं कि कई बार ये कार्मिक भी होता है कि आपके रिलेशंस चले हुए आ रहे हैं, तो उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो स्पिरिचुअल बेस्ड पे और साइकोलॉजिकल बेस्ड पे हम देख सकते हैं कि सोलमेट्स किस तरह से होते हैं। Okay. And I think a lot of people think कि soulmate से आपका relationship romantic होना चाहिए, etc. So I think that's not true. Soulmate can be any soul that you connect with. Correct. Can be any soul. तो वो soul mentor हो सकती है, guide हो सकती है, best friend हो सकती है, sibling हो सकती है, husband हो सकती है, mother हो सकती है. Okay. ठीक है. So moving on, let's talk about your favorite relationship manifestation techniques. My favorite is visualization. या उससे भी ज्यादा मैं एक टॉप मोस्ट जो करूंगी, that is mirror work. Yes, मतलब मिरर वर्क की सुबह उठे और सबसे पहले जाके अपनी शक्ल आपने आईने में देखी और आंखों में आंखें डाल के बोला बॉस डिजर्व तो करती है तू। आई ऑलवेज बिलीव इन इट। मैं कुछ भी लाइफ में काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो आई फील दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे जो सामने इंसान है वो मैं ही हूँ, राइट। और मैं खुद से ये कह सकती हूँ आंखों में आंखें डाल के, बॉस यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओके, तुम सब कुछ कर सकती हो, बस मेहनत करती जाओ एंड यू डिजर्व इट। सो आप मिरर वर्क कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, राइट। विजुअलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे अगर डिपेंड्स कि आपके रिलेशनशिप का नेचर क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी इस स्टेज पर हैं जहां पे आप डेट कर रहे हैं, तो आपको उस तरीके से सोचना है। आपकी शादी फिक्स हो गई है तो उस तरीके से सोचना है। आप चाहते हैं आपकी शादी फिक्स हो जाए तो आप उस तरीके से सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल विजुअलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरी शादी हो रही है, मेरे शादी से ज्यादा मेरे रिचुअल्स हो रहे हैं। तो आपने अपनी मेहंदी विजुलाइज कर ली, आपने क्या आउटफिट पहना है विजुलाइज कर लिया। आप ये देख रहे हो कि लड़के की फैमिली भी खुश है, मेरी फैमिली भी खुश है। आपने देखा कि हमारी एंगेजमेंट हो रही है तो आपने रिंग्स खरीद ली। आप अपने आप को देख रहे हो कि आप ज्वेलर शॉप पे जा रहे हो, आप रिंग्स खरीद रहे हो, तो आप वो चीजें विजुलाइज कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ जो सबसे ज्यादा काम करता है दैट इज एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस भी कर सकते हो कि यू वांट अ पार्टनर सो एंड सो, और मैं डिजर्विंग हूँ, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व अ पार्टनर जो बहुत लविंग है, रिस्पेक्टफुल है, केयरिंग है, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। तो आप एफर्मेशंस भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। So we talked about visualization, we talked about scripting, yes, and we talked about mirror work. Visualization से मुझे याद आया जब मेरी अमित सर के साथ पॉडकास्ट थी, so he was talking about movie making technique, something yes. just make an entire movie, be the heroine or the hero of the movie, and imagine everything that you want. So absolutely yes, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Okay. Now moving on, हमने relationship manifest कर लिया, we are in a relationship. So a lot of times relationships toxic हो जाते हैं. Now toxic, like how to first of all identify that you are in a toxic relationships, and also when we talk about toxic relationships, it's not just ऐसा नहीं होगा हमेशा कि सामने वाला ही टॉक्सिक है, even you can be the toxic one. Correct. So how to identify कि क्या चल रहा है, am I the person who is toxic या क्या चल रहा है? Okay, this is new. Because every time people ask me कि टॉक्सिक क्या होते हैं, ये बताओ सामने वाले में, अरे खुद में भी हो सकते हैं। Exactly, it's very important. See, अगर आप के इमोशंस बहुत हाई और बहुत लो हैं तो आप टॉक्सिक
आप समझ सकते हो कि कुछ तो टॉक्सिक पैटर्न है मेरा. वाई? बिकॉज आप ना कांस्टेंट नहीं हो. आप अचानक से इतने खुश हो जाते हो, फिर आप अचानक से इतने सैड हो जाते हो, अचानक से आपको लगता है ये इंसान मेरी दुनिया में सब कुछ मैटर करता है, फिर अचानक से अगले दिन आपको रो के लगता है कि भाड़ में जाइए, मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है. तो आपके जो इमोशंस है वो कांस्टेंट नहीं है. आपके जो इमोशंस है वो बहुत हाई और बहुत लो है. तो आपको समझना है. दूसरा कि आपका पैटर्न कैसा है. आपको अपना पैटर्न नोटिस करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के साथ आ रहे हैं, तो आपको यह समझना है कि ट्रस्ट इश्यूज किसकी तरफ से आते हैं. सामने वाले की तरफ से आते हैं या मेरी तरफ से आते हैं. अगर मेरी तरफ से आते हैं तो क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है. कारण क्या ये है, पिछले रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट नहीं था, दैट कैन वन ऑफ द रीजन. जब आप पैटर्न नोट करते हो अपना कि क्यों आ रहा है बार बार. मेरे पिछले रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट इश्यूज थे. हाँ थे. ओके, पिछले पार्टनर ने ट्रस्ट इश्यूज थे. क्या पिछले पार्टनर ने भी चीट किया था? हाँ किया था. तो वापस से सेम पैटर्न है. अब ये कहां से आया? फॉर एग्जाम्पल, नाउ गो टू द बैक एंड देन गो इन योर चाइल्डहुड एंड अगेन अंडरस्टैंड कि फादर मे बी कि ट्रस्ट इश्यूज की मम्मी को बिना बताए कहीं भी चले जाते थे. वो पूरे दिन परेशान होती थी कि उस जमाने में तो फोन भी नहीं होते थे, तो पूरे दिन परेशान होती थी कब आएंगे, कहाँ चले गए, बता के नहीं गए. तो वो ट्रस्ट इश्यूज आते थे. कहीं बैठे होते थे तो या कहीं जाते थे तो लेके नहीं जाते थे, है ना. बहुत सारे पेरेंट्स में होता है ना कि फादर या मेल जो पर्सन है वो कहीं भी अपनी वाइफ को साथ लेके नहीं जाते, किसी फंक्शन में नहीं ले जाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे. तो क्या ये वहां से आ रहा है? तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है. आप बहुत ज्यादा जेलसी एंड पॉजेसिव बोल रहे हो प्यार के नाम पे. आप उसको डेफिनेशन प्यार की देते हो. अरे कंट्रोलिंग. अरे बाबू मैं आई लव यू ना, इसलिए तो थोड़ा जेलस होता है ना जब किसी के साथ चले जाते हो. तो बार बार मैं क्यों आपको इतना पॉजेसिव क्यों, या मैं पॉजेसिव इतनी क्यों हूं, बिकॉज इट्स नॉट जेंडर बायस्ड, ये दोनों के लिए लागू होता है. मैं क्यों इतनी पॉजेसिव हुई हूँ, क्यों इतना पॉजेसिव हूँ कि आई लव यू ना, आई केयर फॉर यू. तो वो प्यार के नाम पे आप जेलस फील अगर कर रहे हो, एक आध बार चलता है. आई एम नॉट सेइंग ये गलत है, होना भी चाहिए. है ना. आपका पार्टनर कुछ भी कर रहा है, एकदम ही ऐसे नहीं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो ये होना चाहिए. बट अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है देन इट्स नॉट नाइस. पॉजिटिवनेस अगर बार बार आपकी एक्सट्रीमली हो रही है, मैसेज क्यों नहीं किया, सुबह से शाम हो गई. अरे भाई, बंदा काम कर रहा हो सकता है, प्रेजेंटेशन दे रहा हो सकता है, उसका कोई ऑफिस में क्लाइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप बार बार नहीं उस लड़की को क्यों देखा, उस लड़की की पोस्ट क्यों लाइक करी सोशल मीडिया पे, उसके यहाँ कॉमेंट क्यों करा, ये सब नहीं होना चाहिए. कंट्रोलिंग अगर आप हो, है ना, और आपको हर चीज का कंट्रोल अगर आप के पास है तो वो टॉक्सिक है. आप मैनिपुलेटिव हो. आप मैनिपुलेट करते हो सामने वाले को, है ना, कि तेरे बिना मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे बिना तेरा कुछ नहीं होगा, तू देख कैसे होता है. या हर चीज के लिए आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हो. ऐसा नहीं है सामने वाला ही हमें करता है. अगर आप भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो ये टॉक्सिक पैटर्न आपका भी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वन कैन बी गैस लाइटिंग, जो आजकल बड़ा चलता है. कि गैस लाइटिंग क्या है कि अगर आप बार बार अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर कोई भी इमोशन लेके आता है, आप उसको ये कह के मना कर देते हो कि ये तुम्हारा सोच है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कुछ नहीं है. बट मुझे ऐसा लगा कि तुमने ना शायद मुझे इग्नोर किया. अरे नहीं, ऐसा तुम सोच रही हो. बट मुझे लगा तुमने मुझे 2 दिन से मैसेज नहीं किया, मुझे लगा तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया. अरे नहीं, ऐसा तुम सोच रही हो. तो आप उसका एकदम मैनिपुलेट उसको कर देते हो, आप गैस लाइटिंग करते हो. तो ये आपका टॉक्सिक बिहेवियर है. तो ये कुछ चीजें जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये टॉक्सिक ट्रेट्स हमारे भी हैं जो एक पार्टनर को परेशान करते हैं. करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन. व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो एक चीज होती है, बाउंड्रीज भी हमें बहुत बार सेट करनी पड़ जाती है. राइट. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज सेटिंग बाउंड्रीज, एंड इज इट सेल्फिश कि अगर कोई अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहा है कि लेट्स से किसी को है कि यार 12 बजे कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, हम सो गए थे, नींद आ रही थी, एंड नाउ द अदर पर्सन इज अपसेट कि ऐसे कैसे सो गए थे, बट देयर इज अ बाउंड्री कि दिस इज माय स्लीपिंग टाइम. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, एंड इज इट लाइक, डज इट समवेयर और द अदर इंडल्ज इन सेल्फिशनेस? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूछा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ना अभी आई वाज कोई, तो मैं मीम देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था, तो फीमेल का क्वेश्चन था कि बाबू मुझसे कितना प्यार करते हो. तो उसका जवाब आया बहुत सारा, लेकिन सुबह. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो बाउंड्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज सेटिंग बाउंड्रीज इट्स फॉर अस, इट्स नॉट फॉर द सामने वाला पर्सन. चाहे शादी से पहले हो, चाहे शादी के बाद हो, आपको वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी. बिकॉज द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, अदर विल ट्रीट यू इन द सेम वे. अगर आप अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करते हो कि आपके लिए आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसे सेल्फिशनेस होना नहीं कहते,
इसे बाउंड्री सेट करना बोलते हैं, अपने लिए, अपनी वर्थ के लिए, ताकि सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि आपने एग्जांपल लिया कि रात के टाइम मुझे नहीं करना 12 बजे के बाद, तो आप पहले ही वो कोऑर्डिनेशन करके या आप कम्युनिकेशन करके आप ये बोल सकते हो कि सी मैं 10 बजे के बाद सब सो जाते हैं तो आई विल नॉट टॉक, अगर ये बात शादी से पहले की है. आप वो बाउंड्री सेट कर सकते हो. हम जब भी कहीं, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फिर कल इसी बात पे झगड़ा होगा. बेटर टू कम्युनिकेट इन बिफोर. नाउ आप फाइनेंसेस को लेके बात करते हो कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद की हम बाद में बात करेंगे. एक काम करते हैं, जब भी हम डेट पे जाएंगे हम स्प्लिट करेंगे. इट्स अ हेल्दी वे ऑफ फाइनेंसेस. ये आपने बाउंड्री सेट कर ली. आपने बाउंड्री सेट पहले कर ली कि ओके आई लव वर्किंग, आई रियली वांट टू वर्क, मैं घर नहीं बैठ सकती. ये बाउंड्री आपने सेट कर ली. आपको जो पहनना है, पार्टी में जाना है, जो भी करना है, तो ये कुछ हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये बाउंड्रीज आप सेट नहीं करते हो, क्योंकि पहले तो आप प्यार में होते हो, राइट? तो प्यार में तो इंसान कहते हैं अंधा गूंगा बहरा सब है. तो आप वो सेट नहीं करते. तो एक टाइम जब ऐसा आता है कि आप अपना वजूद खो चुके होते हो, एंड देन आपको ये लगता है कि मैं तो हूं ही नहीं, मेरा कुछ रहा ही नहीं. बिकॉज आप खाना सामने वाले की पसंद से, पहनना सामने वाले की पसंद से, आपने उसको अपने पासवर्ड सारे दे दिए, आपने फाइनेंसेस उसके हाथ में दे दिए. हाँ, वो बोलता है कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है, आपने मान लिया. उसने बोला कि सोशल गैदरिंग नहीं करनी, आपने मान लिया. तो आपको समझने की बहुत जरूरत है कि सोशल बाउंड्रीज जो है, या जो बाउंड्रीज सेट करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. शादी जब आपकी होने वाली है उस स्टेज पर भी इंपॉर्टेंट है. कहते हैं ना कि फाइनेंसेस शादी से पहले ही डिस्कस हो जाने चाहिए. बहुत सारे कपल्स में शादी के बाद होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. आप सोचिए कि 2 लोग हैं, नाव पे बैठने जा रहे हैं, सेम 2 लोग हैं, शादी के बाद सेम नाव पे सवार होंगे और एक को भी नहीं पता चलानी कैसे है. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो फाइनेंसेस का डिस्कशन, आप ये संभालना, मैं ये संभालूंगी, हम दोनों मिलके ये संभालेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शादी के बाद आई विल बी वर्किंग, शादी के बाद आई विल डू दिस, और शादी के टाइम पे हम साथ में मिलकर ये करेंगे. हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, साथ में करेंगे, साथ में गाड़ी लेंगे, साथ में कर लेंगे, वट एवर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप सोचिए ना कि बाउंड्रीज आप आज सेट नहीं करोगे, कल उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो ज्यादा फिर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. बिकॉज सामने वाला क्या बोलता है कि पहले तो तुमने नहीं बोला. हाँ, you were okay with everything. अब अचानक से you're not okay with it. बट वो अचानक से नहीं होता ना. तो बेटर है वो अचानक वाली सिचुएशन आने से पहले आप पहले बोल दो, अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैच्योरिटी के साथ, कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है और ये नहीं लगती. करेक्ट. एंड आई थिंक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट आपके पार्टनर के साथ, आई बिलीव कि इवन एज अ किड आपकी लाइक, डू यू बिलीव कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स एज वेल? देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स, या फिर आई बिलीव इन एवरी रिलेशनशिप ये बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए. 100%. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आप पेरेंट्स के साथ भी करते हो. आज की तारीख में पेरेंट्स थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं कि वो हमारी बात मान लेते हैं, पढ़ने देते हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं. बट स्टिल बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें नहीं है. बिकॉज या स्पेशली इन इंडियन फैमिली कल्चर है, वेरी लाइक बाउंड्रीज नहीं है बट होनी चाहिए. हाँ. बिकॉज दिस लाइक आई वॉज वेरी क्लियर कि शादी के बाद मेरे को, नॉट शादी के बाद, आई वॉज वेरी क्लियर विद माई पेरेंट्स कि मैं अपने फाइनेंसेस खुद उठाऊंगी. तो आफ्टर 12th आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि मुझे अपना कॉलेज का फीस, इसका फीस खुद से करना है. तो आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट. शादी मैं अपनी पसंद से करूंगी. आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट. ऑल्दो मुझे घर से ही सिग्नल मिल गए थे क्योंकि मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है. हाँ. तो आई वॉज लाइक कि ओके मुझे कोई मना नहीं करेगा. तो आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट. आई हैड दिस थिंग विद माई फादर कि आप मेरी शादी चाहे कितना ही बड़े खानदान से रिश्ता क्यों ना आए, आप ये बात याद रखिएगा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी. तो आई रिमेंबर कि मेरे एक बहुत, ऑब्वियसली हमें रिश्ते आते हैं, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, यू नो, अच्छा बिजनेस, डेली का टर्नओवर बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, जूलर फैमिली. तो आप समझ सकते हो कि जूलर फैमिली अगर कोई है तो कितना अच्छा टर्नओवर, सब कुछ होगा. बट माई फादर सेड नो, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर. उनकी भी पहली जो शर्त थी वो यही थी कि मेरी बेटी शादी के बाद काम करेगी, शी विल नॉट बी ओनली हाउस वाइफ, वो काम करेगी. तो छोटी छोटी बाउंड्री सेट करना पेरेंट्स के साथ भी इंपॉर्टेंट है. मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है. मैंने किया अपने पेरेंट्स की पसंद का, लेकिन बहुत कुछ मैंने अपनी पसंद का भी किया. क्योंकि मुझे पता है मुझे इस चीज से आगे तक जाना है. इनकी इस चीज से मैं कितना आगे तक जा पाऊंगी मुझे नहीं पता. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्री सेट करना. आज के पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि डोंट बी अ पेरेंट्स विद योर किड्स, बी अ फ्रेंड, बी अ बेस्ट फ्रेंड. I don't believe in it. I'm an old school female. I don't believe in it because जहां वो पेरेंट्स और बच्चे हैं वहां वो रिस्पेक्ट है, वो एक वॉल है ना. आज हमारे बच्चे हमें आई लव यू बोल के हक करके जाते हैं, बट स्टिल व्हेन आई सिट माय फादर, तो वो एक रिस्पेक्ट है, वो एक वॉल है कि कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है ना. या हम कुछ भी
खुरापाती दिमाग होता है तो डरते हैं कि आज भी वो कुछ बोल ना दे. ये होना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now, like once we are in a relationship, बहुत बार क्या होता है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज अबाउट टेकिंग अ ब्रेक. लेट्स टेक अ ब्रेक. इट्स नॉट अ ब्रेकअप बट वी आर टेकिंग अ ब्रेक. आई थिंक वो फ्रेंड्स में रॉस एंड रेचल का बहुत इट्स अ वेरी फेमस थिंग. डू यू बिलीव इन इट? ऐसा होना चाहिए अगर बहुत दिक्कतें आ रही हैं एंड वन पर्सन सेज कि लेट्स टेक अ ब्रेक, द अदर पर्सन इज परहैप्स नॉट ओके विद इट, सो व्हाट्स द वे आउट? आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि ये वाली सिचुएशन आने से पहले ही रिलेशनशिप में स्पेस देना सीखो. हियर कम्स सेल्फ लव ऑल्सो, कि आपने खुद को पहले एकदम इतना खत्म कर लिया और आज आपको लग रहा है कि मैं तो हुई नहीं, अब आपको अपने लिए वक्त चाहिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा. तो इसलिए ना आपको ये वो कहते हैं ना स्पेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, जब हम कोई गाना सुनते हैं, क्या आपने कोई गाना बिना सांस लिए हुए सुना है? एक आया था ब्रेथलेस, शंकर महादेवन का, लेकिन आप उसमें जाके सर्च करोगे तो मुझे बहुत टाइम बाद ये पता चला कि वो एक्चुअली ब्रेथलेस गाया ही नहीं है, वो उसको एडिट किया गया है. उन्होंने बिना सांस लिए नहीं गाया है, ऐसा नहीं है. हमें लगता था उस एज में, मुझे लगता था ओ माय गॉड, शंकर महादेवन ने बिना सांस लिए इतना बड़ा गाना गा दिया, कैसे पॉसिबल है? बट जब रिसर्च किया समझ में आया कि ओके ऐसा नहीं है, एडिट में ऐसा हुआ है. तो व्हेन इट कम, जब हम कोई गाना सुनते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, उसमें पॉज होता है, उसमें स्पेस होता है, तब उसका मीनिंग ज्यादा समझ में आता है. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, एक स्पेस चाहिए, एक पॉज चाहिए. तो वो छोटे छोटे पॉज ना आप पहले ही ले लो, रादर देन इतना लंबा वो ब्रेक लेने की बजाय कि लेट्स हैव अ ब्रेक टाइम और हम इसके बाद आते हैं. उसकी बजाय आप डेली जो छोटे छोटे रिचुअल्स है ना, आप उसमें इन्वेस्ट करो. स्पेस वैसी दे दो ना, मतलब रात दिन आप कॉलिंग अपने पार्टनर को, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, शाम को कब आओगे, फिर कॉन्वर्सेशन का टाइम नहीं है तो वो बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट है. ये सारी सिचुएशन आने से पहले आप थोड़ा थोड़ा स्पेस देना, थोड़ा थोड़ा साथ वक्त बिताना. अगर आप ये करोगे तो आपको वो ब्रेक टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए होगा. छोटा छोटा ब्रेक टाइम आप ले लीजिए. आप 1 दिन का ब्रेक टाइम ले लीजिए, आप 3 घंटे की मूवी देखने का ब्रेक टाइम ले लीजिए, आप 2 दिन का ले लीजिए. मैं आई जस्ट वेंट टू वेकेशन, अभी घूम कर आई हूँ, वो आप ले सकते हैं. बट ये मुझे नहीं समझ में आता कि, क्योंकि आई डोंट नो कितने मैच्योर कपल्स हैं जो ये कहने के बाद सच में वापस लौट कर आ रहे हैं. करेक्ट. बिकॉज हाँ, मतलब लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जा रही हैं. नहीं, ऐसा नहीं. यू नेवर नो. यू नेवर नो. तो ऐसा नहीं है. सो एंड ऑल्सो लाइक एक चीज होती है, वंस यू आर इन रिलेशनशिप, लेट्स से 2 people are married, husband and wife, whatever. Is it okay कि भाई एक को अभी अकेले ट्रैवल करना है? You just अभी आपने बोला भाई I want to take a solo vacation, या I want to, like husband बोल रहे हैं मुझे अपने male friends के साथ ही vacation पे जाना है. Is it okay? Like I think that should be a healthy thing to do. जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज अब साथ में ही करनी है. बिल्कुल. बिकॉज कहा ना मैंने, वो इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है आपको मेल फ्रेंड्स के साथ जाके वेकेशन मनानी हो, मुझे अकेले मनानी है. समबडी वाज लाइक कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैं अकेले वेकेशंस पे नहीं जा सकती, या मैं अकेले पिक्चर नहीं देख सकती. आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ. बिकॉज मुझे वो कहते हैं ना, बोर होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जब आप बोरियत वाले टाइम में बैठते हो ना, तब आप रियलाइज करते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लाइफ में सब कुछ कैसा जा रहा है, सही जा रहा है क्या, सही चल रहा है, या मैं कुछ और ऐड ऑन करूं थोड़ा सा ग्रोथ के लिए. तो वो बोर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक मैं कर सकती हूँ. इट्स नॉट लाइक कि साथ में ही हमेशा जाना है, लेकिन वो फिर रिस्पेक्ट इंडिविजुअल की होनी चाहिए. अगर मेल कैन गो विद मेल फ्रेंड्स, तो फीमेल ऑल्सो गो कैन विद फीमेल फ्रेंड्स. या कहीं पार्टी में चले गए, आपने मूवी देख ली, गेट टुगेदर कर लिया, किट्टी कर ली, आप कर सकते हो ना. व्हाई नॉट? हेल्दी अगर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे है, तो वो ट्रस्ट लेवल है आपका, ऑनेस्टी है वो आपकी. ऑनेस्टी है. यस. फिर आप ये नहीं कर सकते ना, आप बोल के पार्टनर को कुछ और जा रहे हो और कहीं और जा रहे हो और एक दिन का बोल के जा रहे हो, उसके लिए वो ट्रस्ट चाहिए, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए. सो नाउ अ क्विक रैपिड फायर राउंड विद यू. ओके, सो इफ देयर इज वन थिंग यू वांट टू से टू पीपल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स और मैनिफेस्टेशन, व्हाट वुड इट बी? जस्ट वन थिंग. आप चाहे लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, मैनिफेस्टेशन देख लीजिए, या रिलेशनशिप, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू. Wow. Okay, great. One or any favorite book of yours? Men are from Mars and women are from Venus. Yeah. One of my favorite book which says कि गलत नहीं है मेल और गलत नहीं है फीमेल, it just दोनों की mental wiring जो ब्रेन है वो थोड़ी डिफरेंट है, सोचने का, बात करने का तरीका डिफरेंट है. तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक. Any favorite movie or TV series of yours? सीरीज तो मैं देखती नहीं, मूवी भी बहुत, जब से टॉडलर हुआ है तब से तो मैंने देखना ही बिल्कुल छोड़ दिया. बट फेवरेट कैन बी one of the favorite movies, Dear Zindagi. It's a nice movie. Any favorite travel vacation spot or any place that you want to go? It's on the bucket list, sort of. Bucket list में Paris.
Okay. Yes, Okay. I still have to do it. It's a Yes. beautiful place. Any philosophy or mantra that you live by? Gratitude, which I shared before also, Yeah. because हमारे पास जो भी रिश्ते हैं, I always believe in it, कि हमारे पास जो भी रिश्ते आज हैं, हम कहीं ना कहीं वक्त कम होने की वजह से, काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनको उनके लिए ग्रेटफुल होना भूल गए हैं, और कहीं ना कहीं हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे इन लॉज हो, हमारे खुद के बच्चे हों, हमने कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि कहाँ जाएंगे, यहीं तो रहेंगे। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि ये रिलेशनशिप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इसलिए जो आज है उसके लिए ग्रेटफुल जरूर रहो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो आज आपके पास है बहुत लोगों के पास वो नहीं है। तो आप आने वाली चीजों के लिए तो ग्रेटफुल रहिए ही, बट जो आज आपके साथ है, आज आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के आपकी अच्छे बुरे वक्त में सुन लेता है, आपको सपोर्ट करता है, इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए, तो उसके लिए जरूर ग्रेटफुल रहिए। Now, I'm sure you are an inspiration to many out there. Who is your inspiration? My husband. Because my husband, I learned a lot from him. A lot from him. I think we all do. Yeah. मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी के बहुत सारे नजरिए उनसे सीखे हैं, बहुत छोटी छोटी हैबिट्स मैंने अपने अंदर ऐसी सीखी और चेंज लाया है, जिसकी वजह से लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल और उतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते जितना हम सोचते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने उनसे सीखी हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम दोनों इस बात में बिलीव करते हैं और मानते हैं कि जस्ट अपने हिस्से का काम करते जाओ, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। आप अपना करते जाओ, बाकी यूनिवर्स आप पे मेहरबान रहेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। हम डाउट नहीं करते सिचुएशंस पे, एंड मोर ओवर कि जिसको जो भी करना है अलाउड है। अगर फेलियर भी होगा तो पहले करके देख लेते हैं। तो वी डोंट से नो टू ईच अदर। एंड ही ऑल्सो लाइक कि ना नहीं कहना, आपको ये करना है यस कीजिए, आपको ये करना है कीजिए। ही इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड ही इज माई लाइक वो पुश जो बैक से करते हैं ना कि मत बैठो करो। बिकॉज एक ही टाइम ऐसा आया लाइफ में जब मुझे लगा कि ओके नाउ आई टेक अ बैक सीट थोड़ा सा, और थोड़ा मैं रेस्ट करूंगी। बिकॉज व्हेन आई वाज कंसीविंग माय फर्स्ट चाइल्ड, आई मीन ओनली चाइल्ड आई हैव अभी, तो उस मोमेंट पे बिकॉज आई एम वेरी वर्कaholic, तो मैंने बचपन से बहुत काम किया है, नो सैटरडेज नो संडेज इन माई लाइफ। तो जब मैं आई वाज कंसीविंग देन आई थॉट कि ओके नाउ दिस इज द टाइम मैं थोड़ा सा बैक सीट लेती हूँ। बट ही वाज द वन, ही सेड आज ले लिया ना बैक सीट, फिर लाइफ में बैक सीट चला जाएगा। सो ही pushes me कि okay PhD कर लो, ये कर लो, वो कर लो। So that's how I started. That's honestly very nice, and I think I'm also part of his morning manifestation classes. So I think the way he pushes all of us. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Okay. Your spirit animal. Spirit animal? That I really don't know. I mean, first time somebody is asking me. But क्या हो सकता है? But मतलब which I like the most, या मेरे को लगे मेरे जैसा है, जो लगे like मेरे जैसा है। I like butterflies. Butterflies, wow. Very colorful and woo. I like butterflies. Last but not the least, if you could have one superpower, what would it be and why? अगर मेरे पास एक सुपर पावर होती तो क्या होती है तो पता नहीं, बट वो कुछ भी हो सकती है। बट आई रियली वॉन्ट टू हेल्प फीमेल्स, जिससे मैं ना बस उनको ये समझा, एक सुपर पावर भी मेरे पास होती तो मैं उन फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स आउट देयर, मैं उन्हें ये समझा सकती दैट यू आर इनफ, है ना। वो सब जिस झंझट में फंसे हुए हो ना, या किसी एक छोटी से इश्यूज में फंस के जो अपने आप को होल्ड कर लिया, अपने सपने रोक दिए, खुद को रोक लिया, अपनी चीजों को खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक बार अपने अंदर झांक के देखो और अपनी सुपर पावर पहचान जाओ। तो अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए तो मैं उन्हें बोलूं कि अपनी पहचान लो प्लीज, बिकॉज you are enough alone also. Yes. Like you don't need a relationship or a partner to define who you are. Yes. Okay. Okay. So that was our rapid fire. Now coming back to the podcast. Okay. So we'll kind of wrap up, but before that there's this very important question. It's about do you believe कि जो societal expectations होती हैं, they also affect our relationships and sometimes very negatively as well, because one can be like social media जो हमारा है Instagram. People are posting so many things, so many happy pictures, couple pictures, and then there can be some person जिनकी maybe relationship उतनी अच्छी नहीं जा रही है, और जब वो देखते हैं कि everyone is so happy around me, तो बहुत negative impact होता है। या perhaps जैसा starting में आपने अपना example दिया था, जो cultural shift, जो cultural shock, because India is a place जहाँ पे numerous n number of cultures हैं, you are going perhaps to another culture, तो उनकी expectation है कि आप एकदम से उनके according बन जाओ, आप कहीं और से आ रहे हो। So do you believe कि बहुत एक वो negative impact होता है societal expectations का? Yes, 100% होता है, और हमें समझना, लेट्स से तो मैं यही दो एग्जांपल लेती हूँ जिन दो एग्जांपल्स की आपने बात की। सो फर्स्ट वी टेक इट इंस्टाग्राम का एग्जांपल। व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम ना फिल्टर है बहुत बड़ा,
है ना. सोशल मीडिया इज अ फिल्टर. ओके. और हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने ये चीज कभी नोटिस की होगी अपने रिलेशनशिप में भी, कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में कलेश चल रहा है, बहुत ही गंदा झगड़ा हो रहा है, कलेश चल रहा है दरवाजे के पीछे, और अचानक से डोरबेल बजती है और पता चलता है सामने कोई रिलेटिव खड़ा हुआ है. हाउ वी बिहेव? We behave like nothing happened, boss. Dude, we are in love. हमारी बहुत अच्छी पटती है और हमने जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया. सेम वे, वो जो आप परफेक्ट पिक्चर देख रहे हो ना, उसके पीछे का BTS आपको पता नहीं है. तो बिहाइंड द सीन्स यू डोंट नो. वो एक पिक्चर लेने के लिए हो सकता है हस्बैंड ऑलरेडी कल्पा बैठा था कि मुझे नहीं खिंचानी, मुझे नहीं आना था वेकेशन पे, तुमने फोर्स किया, ये किया, वो किया, इतने पैसे लग गए दुनिया भर का, बट वो एक पिक्चर के लिए लाइक स्माइल करके खड़ा हो गया, एंड देन वाइफ ने पोस्ट करके बड़ा अच्छा सा टैग कर दिया. सोशल मीडिया इज फुल ऑफ फिल्टर. हमारी लाइफ का जो लेंस है उसको कलर हम देते हैं अपने हिसाब से. अब उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरीज भी हैं, कलर्ड स्टोरीज भी हैं, तो हमें वो नहीं करना. रादर देन, अब इसमें हो क्या रहा है ना, अच्छा एक तो ये हो गया कि फिल्टर से फोटो लग रही है, सब कुछ हो रहा है. दूसरा, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो फिल्टर है ना, ये सबके साथ है, सबके साथ है. आप अगर तसल्ली से बैठ के गौर करोगे ना, आपको जो कपल्स लवी डबी लग रहे थे 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, आज वो अलग अलग है. आज उनके पार्टनर्स चेंज हो गए, किसी का अफेयर है, किसी का डाइवोर्स हो गया, राइट. मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि डाइवोर्सेस तो ऐसे हो गए हैं जैसे ओहो इट्स लाइक केक वॉक, बहुत आराम से. और डाइवोर्सेस में उससे भी ज्यादा क्या है कि एक होता है 2 महीने शादी नहीं चली, एक होता है 2 साल शादी नहीं चली, एक है 14 साल नहीं चली, फिर अगर हम AR रहमान जी का एग्जाम्पल लें तो 40+ ईयर्स नहीं चली. तो क्या रीजन है उसका, राइट. कुछ तो होगा. तो हमें बेसिकली क्या समझना है, हम इस फिल्टर जिंदगी से बाहर आए. ठीक है, हमें ये समझना है कि कंपेयर नहीं कर सकते. आप जिंदगी के किसी और चैप्टर पे हो लाइफ के, और सामने वाला कोई और चैप्टर पे है. आप अपनी लाइफ का चैप्टर नंबर 10 किसी और की लाइफ के चैप्टर नंबर 20 से कंपेयर नहीं कर सकते. अब या तो वो सच में खुश है, उसके पास पैसा है, वो वेकेशंस पे जा रहा है, बट आप कंपेयर करने की बजाय खुद का देखोगे ना. आपके पास अगर दाल अच्छे से है तो आप दाल अच्छे से बना के तड़का लगा के खा लो, बट आपको पनीर ही खाना है, आपको कुछ और ही खाना है, तो उससे कुछ नहीं होगा. वो कंपैरिजन लाइफ खराब करती है. एंड कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि स्कूल जाओ तो कंपेयर मत करो, कोई गाड़ी से भी आएगा, किसी की फ्रेश बुक्स होंगी, किसी को सेकंड हैंड बुक्स दिलाई हैं, किसी की यूनिफॉर्म किसी का छोटा बड़े भाई का या बड़ी बहन का पहना दिया, किसी का न्यू यूनिफॉर्म है. कोई बच्चा टिफिन माँ के हाथ का लेके जा रहा है, न्यूज़पेपर में लपेट, फॉइल तो अब आई है, हम लोग तो न्यूज़पेपर में उसकी इंक छप जाती थी रोटियों पे, तो वैसा आएगा. कोई आएगा फॉइल में जो अपना टिफिन लेके आएगा. कोई किसी के पास कैंटीन के पैसे होंगे. तो बेटा कंपेयर मत करना. तो जब आप अपने बच्चों को ये सिखाते हो, या आज की जनरेशन में भी आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते होगे ना, डोंट कंपेयर विद अदर्स, देन व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स. तो वो कंपैरिजन का लेंस अगर आप नहीं निकालोगे, देन यू विल लाइक कि गड़बड़ है चीज़ें. नाउ हम आते हैं जो हमारा जो वैल्यू कल्चरल वाला थिंग है. इसमें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर ज़िंदगी अच्छे से, खुशी में, प्यार से जीनी है, और ये सबके लिए, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर डॉटर इन लॉ एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मदर इन लॉ, या दोनों फैमिलीज़ के लिए नहीं, ये हर इंसान के लिए है. अगर ज़िंदगी खुशी से जीनी है तो कुछ रूल्स बना लो अपने अकॉर्डिंग और कुछ तोड़ दो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो कल्चर है ना, जैसे मैं एक बहुत एग्जाम्पल लेती हूँ. मान लीजिए आई हैव सीन दिस, हाँ, तो मान लीजिए एक फैमिली है और उस दिन एक त्यौहार है, ठीक है. अब त्योहार में हम एक घर में क्या बोलते हैं कि घर की जो बेटियां होती हैं उनको हम नेक देते हैं, चाहे वो दिवाली हो या होली हो, हम कुछ भी होते हैं. अब आप इमेजिन करके देखिए कि वहाँ पे उसी घर की 3 बेटियां बैठी हैं और एक बहू बैठी है, ठीक है. घर का बड़ा आता है और दिवाली पे पहली बेटी को नेक देता है, दूसरी बेटी को नेक देता है, तीसरी बेटी को नेक देता है और पलट के चला जाता है. क्यों? आप बहू को भी तो दे सकते थे. क्या जा रहा था? इसका मतलब आपने उसे बेटी माना ही नहीं. तो ये जो अब ये रूल बन गया ना कि बेटियों को ही देते हैं, तो बेटियों को ही क्यों देते हैं? बहुएं क्यों नहीं आती उस कैटेगरी में? बहुओं से सिर्फ लेना है, देना सिर्फ बेटियों को है. बेटियों को देने में बुराई नहीं है, बट ये जो छोटा सा रिचुअल मैंने कहा ना कि बेटियों को देते हैं, लेकिन अगर आप एक फेस्टिवल पे, तो त्योहार उसका भी तो है. अगर आप फेस्टिवल पे अपनी 3 बेटियों को या बेटियों के जो बच्चे हैं आप उनको दे रहे हो और वहीं पे बहू बैठी है और आप पलट के घूम गए, आप 100 का नोट, 50 का, 11 रुपए शगुन का, आप बहू को भी तो दे सकते थे. और उसमें आपका कुछ जाने नहीं वाला, कुछ नहीं जाना था, बट उसका तो लगता कि उसको पता नहीं आज क्या मिल गया, कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिल गई कि आज त्योहार पे उसे भी मिल गया. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप किसी भी चीज की ना पत्थर की लकीर मत बनाइए कि ये पत्थर की लकीर है. घूंघट करना ही है, ये करना ही है. नौकरी हमारे यहाँ की
फीमेल्स नहीं करेंगी, हमारे घर में ऐसा चलता है, हमारे घर में तवा उल्टा ही रखा जाएगा, हमारे घर में थर्सडे को ये नहीं होगा, ट्यूसडे को ये नहीं होगा। तो आप इतना स्ट्रिक्ट मत बनाइए। चीज़ों के साथ साथ, बदलते वक्त के साथ साथ, बदलते लोगों के साथ साथ आप अपने रिचुअल्स भी बदल सकते हैं। जब आप थोड़ा सा टर्न करते हैं ना रिचुअल्स को, तब आप देखिए कि जो आपकी डॉटर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, वो किस तरह से उस पर रिएक्ट करके कितने खिल जाते हैं क्योंकि मेरे लिए ये किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बहुत कम होना चाहिए। इट्स वेरी I think it needs that understanding कि rituals are not the ultimate truth. Yes. That is why every place has its own rituals. अगर वो ultimate truth होता तो सब जगह एक ही होता। सेम होता, वेरी ट्रू। तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट। ऑल्सो एक हमने बीच में देयर वाज सम वेयर वी वर टॉकिंग कि आजकल डिवोर्सेस एकदम हाई रेट पे चल रहे हैं और बहुत Yes. कुछ ब्ला 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 चल रहा है Yes. ऑनलाइन न्यूज में। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये आजकल का ही कुछ ऐसा ट्रेंड हो गया है, या ये पहले भी था, बस सोशल मीडिया नहीं था तो हमें पता नहीं लगता था, या बिकॉज ये जेन जी जनरेशन है या जो भी नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन है, उनमें कुछ तो ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग अपार्ट मोर देन कनेक्टिंग, ऐसा कुछ है क्या? मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? क्योंकि होता ये पहले भी था, बट पहले इस लेवल पे नहीं होता था। वाई इस लेवल पे नहीं होता था? बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज अब सब कुछ ओपन है और अवेलेबल है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पहले नहीं थे। जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई तो हमने अपने दादा दादी को, नाना नानी को यही कहते सुना कि इस इंसान से तेरी शादी होगी, इसी से निभानी है। अब इनफैक्ट आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल, मैंने भी यही सुना कि इस इंसान से शादी हो रही है, इसी से निभानी है। निभाने का मतलब डिफरेंसेस होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, झगड़ा होगा, बातचीत होगी, गुस्सा गुस्सी होगी, सब ठीक है, बट समझना है ना इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो समझने वाला कि इसको सॉल्व करना है, आजकल वो सॉल्व नहीं है, आजकल वो रिजॉल्व नहीं है। मतलब हो गया तो तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अब या तो पहले से ही उस चीज को इतना समझ जाओ कि वहां तक की नौबत ही नहीं आए, राइट? जैसे तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी में सेल्फ वर्थ तब रियलाइज हुआ जब उसे थप्पड़ पड़ा। पहले भी तो हो रहा होगा ना चीजें, तो वो पहले चीजों से भी समझ जाना है कि क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना कि हम किस पॉइंट पे जी रहे हैं, हम किस पॉइंट पे जा रहे हैं, हमें क्या समझना है, कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि डिवोर्सेस जो हो रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने बोला सोशल मीडिया। पहले शादी के लिए पेरेंट्स मिलवाने ले जाते थे, शादी में, बर्थडे में, किसी के यहाँ सगाई में, मेहंदी पे, कि एक लड़की दिखा देंगे दूर से या लड़का दिखा देंगे। उसके बाद एक टाइम आया जब आप मिलवाने लगे, घर पे आने लगे, रिश्ते होने लगे। आजकल क्या है? आजकल ओपन कल्चर है, आजकल किसी को शादी की कमिटमेंट ही देनी, सिचुएशनशिप है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आज आपने मुझे कॉफी की जगह अगर चाय दी तो मैं इसी बात पे रिलेशनशिप तोड़ के जा सकती हूँ। इतना छोटा और इतना सेंसलेस हो गया आजकल का रिलेशनशिप। जेनजी कमिटमेंट नहीं चाहती, जेनजी अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, ग्रोथ पे करना चाहती है, विच इज़ वेरी गुड, बट दे डोंट वांट कमिटमेंट। वो रिलेशनशिप का ठप्पा लगाना नहीं चाहते। तो इस वजह से मुझे लगता है कमिटमेंट नहीं लेना चाहते, बात नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं सब बढ़ रहा है। एंड डिवोर्सेस का अगर हम स्पेशली बोलें तो टॉलरेंस, पेशेंस खत्म हो गया। वो पेशेंस ही चला गया कि सिचुएशन आई है, इसको ठीक करा जा सकता है वक्त देके। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी होती होंगी जिसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब हो गया, किसी फीमेल ने या मेल ने 10 साल, 15 साल, 3 साल, 6 महीने अब झेल लिया, अब उससे नहीं हो रहा। आई कैन अंडरस्टैंड वो सिचुएशन, दैट वाज द ओनली ऑप्शन, दैट वाज द ओनली ऑप्शन, बट आज नहीं है। और आजकल जो वन ऑफ दिस रीजन कि पेशेंस नहीं है, और दूसरा रीजन जो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है, दैट इज फर्क है आजकल के पेरेंटहुड और पैम्परहुड में। आजकल पेरेंटहुड कम हो गया है, पैम्परहुड ज्यादा हो गया है। पहले जब लड़कियां कॉल करती थी अपने घर पे या लड़के कॉल करते थे तो पेरेंट्स समझाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, ये हर घर की कहानी है, होता है। आजकल कॉल करती है तो अगले दिन पेरेंट्स पहुंच जाते हैं या शाम को ही पहुंच जाते हैं कि हम आ रहे हैं, बैग पैक कर हम आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंटहुड इज कि समझाना कि ओके ये सिचुएशन है, और कल को दूसरी जगह शादी कर लोगे तब भी तो आएगी। इट्स नॉट कि इसमें आ रही है, कल को दूसरी जगह शादी करके जाओगे तब भी आएगी। तो बेटर है उसे समझाना। पैम्परहुड क्या है? अच्छा ऐसे बोला, फोन रख, हम अभी आ रहे हैं, बैग पैक कर। दिस इज परहैप्स इफ इट इज अ सिचुएशन जहां से निकलना ही बेटर है, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल। यस, हाँ, बट अदरवाइज हाँ, ट्रू। So before wrapping up, my last question, because this entire podcast is about relationships, and I believe the most important relationship that you'll ever have is with yourself. Yeah. Yes. So let's conclude on that note. What do you want to say to the viewers as a conclusion, especially about a relationship with your own self? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? खुद से प्यार करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुद से प्यार करते हो और खुद में कंप्लीट होते हो ना,
आप दुनिया को अपना बेशुमार प्यार लौटाते हो, राइट? बहुत कुछ देते हो, लेकिन अगर खुद के अंदर खालीपन है, आप खुद से दुखी हो, अंदर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सामने वाले इंसान को ना प्यार दे सकते हो, ना रिस्पेक्ट दे सकते हो, ना सेटिस्फैक्शन दे सकते हो। इसलिए खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका फ़ोन भर जाता है, उसमें नोटिफिकेशंस आने लगती हैं कि अब ये भर गया है, तो आप कुछ पुराने वीडियोस डिलीट करते हो, कुछ फ़ोन्स में इमेजेस डिलीट करते हो, उसको खाली करते हो, और वापस से वो उसी स्पीड पे काम करने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा रिचार्ज ना हमें अपने लिए भी ज़रूरी होता है। खुद के साथ बैठना, खुद का म्यूजिक सुनना, खुद के साथ एक कप चाय पीना, खुद को डेट पे ले जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुद के साथ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुद में कंप्लीट होते हो, हील्ड होते हो, तभी आप सामने वाले को अपना बेस्ट दे पाते हो। And on that note, I think we'll end this podcast over here. So nice. I mean, so nice to have you here. And मैंने भी बहुत कुछ सीखा is through this podcast, and I'm sure that the viewers will be able to do that as well. Yes. So thank you for coming. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you so much, Nupur. Thank you. Thank you. Thank you.